اس میں ہمارے ہردل عزیز پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی، بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں ہمارے ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل، اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو، بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ ایگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے، نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی، آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی۔ اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ، ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے، تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا، جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے، اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے، نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ علامتی چیزیں ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہمیں کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج، آنے والے احتجاج بھی ہوں گے، وہ پرامن ہوں گے، وہ زور و شور سے، پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ۔ اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ اسد کیسر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 3 باتیں کروں گا۔ نمبر 1، جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے، تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے، اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا، کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا، اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں، یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پہ چلایا جائے گا۔ حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنی جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے، لیکن جس طرح یہ کر رہے ہیں، یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ تیسری بات، جو ان مہنگائی کی بات تو کی، عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے، یعنی یہ جو آئندہ بل آ رہے ہیں، یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی یہ بل پے کرے۔ جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے، جتنے انہوں نے کیا ہے، کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے، ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا، ایک غلط فہمی ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے۔ ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے
रब्ता भी किया। इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है, इनको रिज़ाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितनी कैदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारे सूबे को टारगेट किया हुआ है और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे साहबी लाखों का मजमू तो अमल चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले के मुताबिक चलाएंगे। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल पैटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजरों से और जितने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करेंगे। मैं एक सेकंड कर दूंगी, फिर आप कर लें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि सारी गुफ्त डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। एक ही तरीक़ाकार है, एक मजबूत हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बैसियत वज़ीर आज़म, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है इंशाअल्लाह। शबली भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो अलामती भूख हड़ताल है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जो जुम्मे वाले दिन उसने हमेशा आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी सारी सियासी जद्दोजहद की है। हम कातिल पंजाब की हुकूमत का और मरकज़ की हुकूमत का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर रजिस्टर्ड FIRs हैं। ये जो वहाँ पर हिस्सा हैं और ये हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये कभी मॉडल टाउन के अंदर गोलियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन्हें और पंजाब के IG को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये वक़्त एक जैसा नहीं रहना। ये आप लोग आज जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपने पर किया तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ने सुन लिया है कि आज अलामती भूख हड़ताल का आगाज़ हुआ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक मूवमेंट की शक्ल में ढल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फैलेगी। एक सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, महज़ब तरीक़ाकार है अपनी आवाज़ को उठाने का, आइनी है, कानूनी है और दुनिया के अंदर राइज है। देखें, इसमें किसी ने असला नहीं उठाया हुआ, किसी ने डंडा नहीं उठाया हुआ, कानून के मुताबिक है। किन के ख़िलाफ़ है? पाकिस्तान के सियासी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों के ख़िलाफ़ है। मुल्क को सियासी बदतरीन सियासी बहरान हत्ता दलदल में डालने वालों के ख़िलाफ़ है। माशी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों का है। माशी तौर पर मुल्क को अगले हाथों में बेच देने वालों के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के अंदर जो सोशली और सिक्योरिटी अमन अमान के हवाले से जो इस वक्त तबाही बर्बादी हो रही है और ख़तरनाक किस्म के साए मंडला रहे हमारे वतन के ऊपर, इसकी तबाही बर्बादी के, इनके ख़िलाफ़ है कि जो उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे और जो नहीं करना चाहिए उसके अंदर ये धंसे हुए हैं। लिहाजा ये हमारे फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए हमारी रहूंगा, तू हमारा फ्यूचर हो। तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस जुल्म सितम के खिलाफ, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजीद जंगों में धकेलने के खिलाफ जो ये प्लान किए हुए कि पाकिस्तान के अंदर जंगे लेके आना चाहते हैं, बातचीत नहीं करने चाहते, जंगे लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ आपने निकलना होगा जवानों। आइंदा जो आने वाला जुम्मा है हम सब ने निकलना है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो भूख हड़ताल है मुझे उम्मीद है एक मूवमेंट की शक्ल में ढलेगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अजीम मूवमेंट होगी ये भूख हड़ताल की मूवमेंट। और जुम्मा जो आने वाला है, मैं अपने तमाम दोस्तों को, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं,
चाहे वो टीचर हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की उम्मीद है, और पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है। 90% से ज्यादा आवाम, वो पाकिस्तानियों को एक कौम बना सकता है, पाकिस्तान के बुरानों से निकाल सकता है। हम उसके साथ हैं और इस राह में इंशाअल्लाह आखिर तक खड़े हैं। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को, अपने सब दोस्तों को से कहता हूँ कि जुम्मे के दिन, नमाज जुम्मा के बाद आपने पुरअमन एहतजाज करना है। मुल्क के अंदर नाइंसाफी के लिए, मजदूरों के हक के लिए, बेरोजगारों के हक के लिए, महंगाई की चक्की में जो पिसे उनके हक के लिए, वो जो जेलों में बेगुनाह है उन कैदियों के लिए। इमरान खान साहब का बेगुनाह जेल में जाना हमें मुतवज्जो करते कि हर बेगुनाह कैदी जो जेलों में है हम उसको आज़ाद कराएंगे, हम उसके हुकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को वहाँ ले जाना चाहते हैं जब वापस ना सके, हम इनको वहाँ नहीं ले जाने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात सुन लें एक मिनट, आखिरी बात सुन लें प्लीज़, एक आधा जुमला। लिहाजा मैं अगले जुमे के हवाले से भी सबसे कहता हूँ कि निकलें बाहर, GB से लेकर पूरे पाकिस्तान में, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ पूरी दुनिया में कि भूख हड़ताल को मूवमेंट में ढालने के लिए भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अजीज़ हम आखिर दम तक खड़े रहेंगे, और इस हारे हुए लश्कर को जो आवाम से लड़ना चाहता है इसको हरा के, ये हारा हुआ है लेकिन इसके हार का जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह, और इसके सरपरस्तों का भी इस हार में वो शरीक है, उनका भी जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, दुनिया में बावकार होगा, तरक्की करेगा, पेशरफ्त करेगा, और हमारी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब का क्या मौक़िफ़ था, क्या शोहरत दी जा रही है उन अरकान को जिनको आपने कहा कि हरासा करने का मामला आपने उनके सामने रखा, किस किस्म का हरासा किया जा रहा है? देखो, स्पीकर साहब के सामने हमने जो मामला रखा था वो पार्लियामेंट लॉजेस का रखा था कि जहाँ तक पार्लियामेंट लॉजेस का ताल्लुक है इसमें गैर ज़रूरी लोग भी आते हैं, इसमें दूसरे किस्म के लोग आ जाते हैं जो अपने हमारे जो नुमाइंदगान हैं यहाँ रहते हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं। उन्होंने वादा किया है और उन्होंने